اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج رات میں 3:30 بجے اپنے گاؤں پہنچا، کیونکہ گزشتہ کل بھی منماڑ ناسک ضلع کا ایک شہر ہے ایولا میں جامعہ ابو ہریرہ کا ایک بہت ہی شاندار اجلاس عام اور اصلاح معاشرہ و استقبال رمضان کے نام سے ایک پروگرام تھا، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا، اور ریاست مہاراشٹر کے پونا شہر کی ایک علمی شخصیت حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب کی اس اجلاس میں صدارت تھی۔ حافظ مولانا شاکر صاحب اس جامعہ ابو ہریرہ کے ناظم اعلیٰ ہے۔ پروگرام بہت ہی شاندار رہا، ایولا کے ذمہ داروں نے اور ایولا کے جوانوں نے شاندار پروگرام سجایا تھا۔ اس پروگرام میں کھل کر میں نے عصری تعلیم، دینی تعلیم دونوں کی اہمیت پر میں نے کھل کر بات کی اور امت مسلمہ سے اتحاد و اتفاق کی اپیل کی، اور ہر قسم کے جماعتی اور مسلکی جھگڑوں سے دور رہنے کی اپیل کی، اور ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نصیحتیں ضروری تھی وہ نصیحتیں اللہ نے میری زبان سے بلوائی کروائی۔ یہ پروگرام انتہائی کامیاب رہا، اور ابھی فی الحال بس میں آفس پہنچا اور آج خبریں بول کر فوراً نکل جاؤں گا، کیونکہ آج بھی 2 مسجدوں کا الحمدللہ میرے ہاتھوں سے اوپننگ ہے، افتتاح ہے۔ سلوڑ شہر سے قریب 10 کلومیٹر قریب بھراڑی ایک گاؤں ہے، وہاں پر مسجد یاسمین کا افتتاح میں مغرب کی نماز پڑھا کر کروں گا، اور پھر سلوڑ شہر میں عشاء کی نماز کے بعد ایک مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس کا سنگ بنیاد رکھوں گا۔ تو اللہ یہ نیک کام میں لے رہا ہے۔ اس مہینے میں تقریباً 20 سے 22 مسجدوں کا سنگ بنیاد یا نماز پڑھا کر میں نے افتتاح کیا۔ اللہ یہ بھی کام لے رہا ہے، بس دعائیں کرے کہ اللہ قبول کرے، اللہ ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے، آمین، اور اللہ خوب طاقت دے، کیونکہ روزانہ پروگرام ہے، بس اللہ کیسے چلا رہا ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ ہماری عقل تو سوچے تو کام نہیں کرتی ہے، بس اللہ ہی کی مدد ہے جو اتنا کام کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی اس وقت بھارت جوڑو نیائے یاترا پر نکلے ہوئے ہیں، اور لاکھوں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ گزشتہ کل شاہجہاں پور میں راہل گاندھی کا روڈ شو تھا، پھر اس کے بعد ان کی سبھا ہوئی، ظاہر سبھا ہوئی۔
जिसमें उन्होंने प्यारे अंदाज में एक जुमला बोला कि मोदी चाहते हैं जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, यानी जय श्री राम। और क्या करे, अंध भक्तों का टोला, गोबर भक्तों का टोला, इनको धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जय श्री राम बोलो, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं हटने वाली है, सत्यानाश मुल्क का हो जाने वाला है, कारोबार का सत्यानाश हो जाने वाला है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जय श्री राम, राम मंदिर हमने दे दिया, बाकी हमसे कुछ मत मांगो, न रोजगार मांगो, न कारोबार मांगो, न नौकरियां मांगो, कुछ मत मांगो। जय श्री राम, राम मंदिर हमने दे दिया है। और अन्य भक्तों का टोला, गोबर भक्तों का टोला उसी पर खुश है। तो राहुल गांधी ने जमकर मोदी पर निशाना साधा और रोड शो के दौरान ये कहा कि मोदी जी सिर्फ इतना ही चाहते हैं, धर्म में उलझाए रख रहे हैं, जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी मजहब को मजहब से लड़ाती है, जात को जात से लड़ा रही है। इसके खिलाफ हमने भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस वक्त बीजेपी ने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है और फिर हमारे जवान दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं। तमाम रोजगार तो चीन के नौजवानों को मिल रहा है। इन नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए ही मैं यात्रा निकाल रहा हूं। आइए दिन दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा खान पर फसाद कराने का इल्जाम लगाया गया है। अदालत से सम्मन जारी हो गया है। 11 मार्च को मौलाना तौकीर रजा खान को अदालत में पेशी का हुक्म दे दिया गया है। बरेली फसादात केस में अदालत ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सरबराह तौकीर रजा खान को मास्टरमाइंड माना है। एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक ने साल 2010 में हुए फसादात के मामले में उस वक्त के पुलिस और इंतजामी अफसरान ने मुनासिब कार्रवाई न करने का खुद नोटिस लिया है। अदालत ने मंगल को सम्मन जारी करते हुए मौलाना को 11 मार्च को तलब कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2010 के फसादात केस में उस वक्त के तफ्तीशी इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव और कई गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद कराए थे। उसमें मौलाना तौकीर रजा पर मोहम्मदी जुलूस के दिन फसादात भड़काने का इल्जाम लगाते हुए सबूत पेश किए गए। आइए एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई के मलाड मालोनी। आप जानते हैं कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के नाम पर जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और उस प्रोग्राम में बीजेपी का एक जहरीला विधायक हिंदू और मुसलमानों में नफरतें फैलाने, दंगे और फसाद भड़काने का जबरदस्त अंदाज में काम कर रहा है। और कमाल यह है कि उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है क्योंकि बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है और हुकूमत का आदमी है। इस वक्त उसके खिलाफ केस दर्ज करने का, यानी नीतीश राणे के खिलाफ केस दर्ज करने का डिमांड और मुतालबा MIM के जिम्मेदारों ने तहरीरी शिकायत के तौर पर उस पर केस दर्ज करने का डिमांड किया है। सक्कल हिंदू समाज के एक रुकन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता इतवार को सक्कल हिंदू समाज की जानिब से मलाड मालोनी के गेट नंबर 8 से हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, जिसमें बीजेपी के MP गोपाल शेट्टी और बीजेपी के MLA नीतीश राणे ने शिरकत की थी। इस मोर्चे में BJYM मुंबई के सदर और कई हिंदू तंजीमों के रजाकारों ने भी हिस्सा लिया था। इस मोर्चे में नीतीश राणे ने जमकर कोबरा और जहरीले नाक से भी ज्यादा जहर उगला था और पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ बाकायदा MIM के लोगों ने तहरीरी लिखित रूप में शिकायत दी है और नीतीश राणे के खिलाफ केस दर्ज करने का डिमांड किया है। आइए मगरबी बंगाल के कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है। जहां कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और अब खबरें आ रही है कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर देंगे या ऐलान कर दिया है। जी हां, मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस अभिजीत गंगो उपाध्याय ने पहले ही वाजे कर दिया था कि वो बीजेपी का हिस्सा बनेंगे। जिन जजों ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, ज्ञानवापी का फैसला सुनाया, अमित शाह को क्लीन चिट का फैसला सुनाया, उन जजों को बड़े बड़े इनाम मिल चुके हैं। अब इस जज को भी इनाम जल्द ही मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 मार्च 2024 को इन्होंने रियासती राजधानी कोलकाता में बताया कि 7 मार्च की दोपहर को एक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। यानी कोलकाता हाई कोर्ट के साबिक जज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। फिर जल्द ही आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ा इनाम मिल जाएगा।
आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दाई इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जमानत को चैलेंज किया गया है और उस चैलेंज पर अब 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दीली मजहब केस के मुलजिम मुबल्लिग इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जमानत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर इजाफी दस्तावेजात के साथ जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी। अदालत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की जानिब से बयान हल्फी दाखिल करने की भी इजाजत दे दी है ताकि उनकी सेहत की तफसीलात रिकॉर्ड पर रखी जा सके और अब इस केस की समाअत 2 अप्रैल को होगी। पिछली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया था कि मुल्क में मजहब की तब्दीली की इजाजत है, लेकिन कानून लालच, जबरदस्ती या धोखाधड़ी के जरिए तब्दीली की इजाजत नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से कहा है कि वो भागने वाले मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करे। तबादलों का रैकेट इल्जामात से मुताल्लिक तफसीलात देने को कहा गया। उत्तर प्रदेश ATS ने सितंबर 2021 में हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया था और अब वो जमानत पर रिहा है, मगर उनकी जमानत को भी चैलेंज किया गया। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, DMK लीडर के बयान पर विवाद हो गया। A राजा ने कहा कि हम सब राम के दुश्मन हैं और ये भी कहा कि हिंदुस्तान एक नेशन नहीं। जिस तरीके से मोदी की तरफ से ये टैग चलाया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है हिंदुस्तान एक नेशन, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक नेशन नहीं। DM के लीडर के बयान पर विवाद हो गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हनुमान का उन्होंने बंदर से मुवाजना किया और जय श्री राम के नारे को उन्होंने नफरत अंगेज नारा करार दिया कि ये नारा कोई भगवान राम का नहीं बल्कि ये जय श्री राम का नारा इस वक्त आतंकवाद फैलाने का, दंगे फसाद फैलाने का ये नारा बन गया है, ये नफरत अंगेज नारा है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि मणिपुर में लोग कुत्ता खाते हैं, मणिपुर में लोग कुत्ता खाते हैं, अगर कोई गाय का गोश्त खाता है तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों? DMK के लीडर A राजा एक बार फिर हेडलाइंस में है, सुर्खियों में है। मामला हिंदुस्तान और सनातन धर्म के हवाले से उनके मुतनाज़िया बयान का है। A राजा ने अपने हालिया बयान में कहा कि हिंदुस्तान एक कौम नहीं है, इस बात को अच्छी तरह समझ ले। हिंदुस्तान कभी भी एक कौम नहीं था, हिंदुस्तान एक कौम नहीं बल्कि बर्रे सगीर है। A राजा का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन के बेटे निधि स्टालिन को सनातन धर्म के मुखालिफ बयानबाजी के लिए फटकार लगाई और फिर ये बयान दूसरा A राजा का भी आया है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए, बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो जाएगा। 14-15 मार्च से आचार संहिता, ज़ाब्ते अखलाक के निफास का इम्कान है। ज़राए ने यह दावा किया है। मगरिबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मुनसिफाना और तासुब से पाक इलेक्शन के लिए अफसरान को हिदायत दी, लेकिन क्या करे, ये सब बातें ही रह जाती है। इलेक्शन इंसाफ पसंदी और तासुब से पाक इलेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि आप देखो कि जब सभाएं शुरू होती है तो नफरती फैलाने वाले, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने वाले नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। खैर, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि जल्द ही लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और बाकायदा 14 या 15 मार्च से आचार संहिता लागू हो सकती है, लग सकती है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए, बड़ी खबर आ रही है हमारे शहर जलगांव की। जी हाँ, हमारे शहर जलगांव में गुज़िश्ता कल मरकजी वजीर दाखिला गृह मंत्री
अमित शाह गुज़िश्ता कल हमारे शहर जलगांव में आए थे। जी हाँ, और जलगांव में आकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि अपोजिशन पार्टियों पर उन्होंने निशाना साधा, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। जी हाँ, विकास कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से राजनीति करना है और आपस में लोगों को लड़वाना है। तो अमित शाह कल आए और उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर एक निशाना साधते हुए कहा कि भाई बहनों, महाविकास आघाड़ी एक पंक्चर रिक्शा है, जबकि रिक्शा वाले को तो तुमने साथ में ले लिया है। महाविकास आघाड़ी एक पंक्चर रिक्शा है। वज़ीर दाखिला ने जलगांव का दौरा किया। इस दौरे में नौजवानों से बात करते हुए कहा कि 2047 तक तरक्की पजीर हिंदुस्तान के लिए आप मोदी को मुंतखब करें। अरे मेरे भाई, अभी 10 साल में पूरे मुल्क की मोदी ने वाट लगा दिया, सत्यानाश कर दिया, रोजगार खा गया, बेरोजगारी बढ़ गई, नफरत दंगे फसाद बढ़ गए, और ये कह रहे हैं कि 2047 तक के हिंदुस्तान तरक्की कर जाएगा। 2047 तक के आप मोदी जी को ही वजीर आजम बनाए हैं। तो भारत की जनता इतनी अंधभक्त, गोबर भक्त और इतनी पागल नहीं है। और भारत के युवा तो अमित शाह जी इतने पागल नहीं है। भारत के युवा अब पढ़े लिखे हो गए हैं, वो इस तरीके से बिन पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं समझेंगे। आइए दिन महाराष्ट्र की एक बड़ी सियासी हलचल वाली खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने गुज़िश्ता कल अचानक शरद चंद्रजीत पवार से मुलाकात की। लोकसभा इलेक्शन के पसे मंजर में सीट अलॉटमेंट को हतमी शक्ल देने के लिए अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के लीडर सरबराह उद्धव ठाकरे एनसीपी के शरद पवार साहब की मुंबई में उनकी रिहाइश गाह पर अचानक पहुंच गए। लोकसभा इलेक्शन और ज़ाब्ते अखलाक का ऐलान होने में सिर्फ चंद दिन बाकी है। महाविकास आघाड़ी और महायुति की सीटों की तकसीम आखिरी मरहले में है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की दरार अब भी कुछ जगहों पर बरकरार है। अब सियासी हलकों में यह चर्चा है कि उद्धव ठाकरे खुद शरद पवार से मिलने गए हैं ताकि इस मसले का कोई रास्ता, कोई हल निकाला जा सके। नाज़रीन, महाराष्ट्र के जालना से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। इस खबर को मैं इसलिए सुना रहा हूं कि माँ बाप इस खबर पर ध्यान दें। जालना में मोबाइल की बैटरी फटने से एक 5 साल के बच्चे की बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक जालना जिले में मोबाइल फोन की बैटरी फटने से 5 साल का लड़का जाँ बहक हो गया। यह अलमनाक हादसा पीर की शाम भोकरदन तहसील के कुंभारी गांव में पेश आया। पुलिस फ्रांसिक टीम और माहिरीन की मदद से मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल की बैटरी फटने से 5 साल बच्चे की जान गई है। यह वाक़या पीर को पेश आया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल चार्ज करते वक्त फोन पर बात करते हुए बैटरी फट गई। इस वाक़े से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मरने वाले की पहचान समर्थ टायड़े उम्र 5 साल के तौर पर की गई है।